Hello, myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Good morning, dear students. How are you? I hope that you are all fine at home. Dear students, in our previous video, we read about chapter 2nd, globe, latitudes and longitudes, part 1st in geography, and today we will read and discuss also chapter 2nd, part 2, latitudes and longitudes. In our previous video, we learnt about globe, its axis, its equator, northern hemisphere, southern hemisphere, and the parallels of latitudes. Here is your book of social science, geography, the earth, our habitat, and we will start our part 2nd of chapter 2nd, and we will read and discuss about important parallels of latitudes, major zones of the world, and longitudes, meridians, etc. Important parallels of latitudes. Beside the equator, 0 degree north, beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south, there are 4 major important parallels of latitudes. इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल पे यानी 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में जो हैं 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सिचुएटेड हैं, और दीज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्किल and the Arctic Circle and the Antarctic Circle. Dear students, their positions are on the globe is Tropic of Cancer, situated at 23.5 north in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn 23.5 degrees south in the southern hemisphere, and Arctic Circle at 66.5 degrees north of the equator, and Antarctic Circle at 66.5 south of the equator. Dear students, we will understood it by the help of the diagram. At first, we understood about the northern hemisphere's parallels on latitudes. Here is equator on 0 degree, and when we move from the equator towards the south, the first main parallel of the latitude is Tropic of Cancer, and it is situated at 23.5 degree north, and when we move from equator to northern hemisphere, the next main parallel of the latitude is Arctic Circle, that is situated on
66.5 degree northern hemisphere. When we move from 0 degree equator to southern hemisphere, the first main important parallel is Tropic of Capricorn, and it is situated on the 23.5 degree at southern hemisphere. After it, when we move from the equator towards the southern hemisphere, the next main parallel of the latitude is Antarctic Circle, and it is situated on 66.5 degree south at the southern hemisphere. Dear students, observe it carefully. The from equator to northern hemisphere, the first main parallel of latitude is Tropic of Cancer. The second one is Tropic of Capricorn, and when we move at northern hemisphere, the third main parallel of the latitude is Tropic of Capricorn and the Tropic of Dear students, we repeat it again because I made a mistake. When we move towards the northern hemisphere from equator, जब हम इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट पैरेलल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, और उसके जस्ट अपर साइड में हमारी जो सेकंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्किल, और इट इज़ सिचुएटेड ऑन 66.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है आर्कटिक सर्किल। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेटर से जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर जाते हैं तो हमारी जो थर्ड मेन पैरेलल है लैटिट्यूड्स की वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और वो 23.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में है। और जो नेक्स्ट है वो है एंटार्क्टिक सर्किल, और वो सिचुएटेड है 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में। Dear students, here you can find the difference between latitudes and longitudes. Here is these all lines on the globe are known as latitudes, and all these standing lines known as longitudes. Here is a figure of your textbook to showing the main heat zones and important पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ पे जो है आपको एक पिक्चर दिखाई गई है कि आपके टेक्स्ट बुक की हैं, और इस पे जो हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं वो शो हुई हैं, और इसके अलावा जो हैं इसमें जो मेन जो हीट जोन्स हैं उनको भी शो किया गया है। ये जो हैं दीज आर द मेन हीट जोन्स। Dear students, there are 3 heat zones on the earth: the torrid zone, next one is the temperate zone, and the third one is frigid zone.
At first, we will read about these heat zones on the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. मेन हीट जोन्स हैं अर्थ के वो इस तरह से हैं कि मिड डे जो सन होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सिर के ऊपर होता है एटलीस्ट वंस ए ईयर, पूरे साल में एक बार जो है सन है वो बिल्कुल सीधा होता है और इसकी जो लैटिट्यूड्स के ऊपर, और ये जो एरिया होता है वो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में ये एरिया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है हीट रिसीव करता है, यानी मैक्सिमम हीट यहाँ पे फॉल होती है और इसीलिए जो ये एरिया है उसको टॉरिड जोन या हीट जोन के नाम से जाना जाता है। हमारा जो सेकंड जो जोन है वो है हमारा टेम्परेट जोन। द मिड डे सन इज द मिड डे सन never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. Dear students, जो मिड डे जो सन होता है वो कभी भी जो है ओवरहेड शाइन्स नहीं करता है लैटिट्यूड्स पे, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड बिटवीन में के अलावा, और जो एंगल होता है सन रेज का वो डिक्रीज होता जाता है जब हम जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसीलिए जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जैसे जैसे हम जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और जो है आर्कटिक सर्किल की ओर जाते हैं, जो सन की जो रेज हैं वो है इतना जो है हीट जो इस पर नहीं डाल पाती हैं, और इसी तरह से जैसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और एंटार्क्टिक सर्किल की ओर मूव करते हैं तो सन रेज हैं वो डिक्रीज़ होती जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है और इसीलिए जो ये एरिया है टेम्परेट जोन्स कहलाता है। यहाँ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एरियाज लिंग between the Arctic Circle and the northern pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and in the south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays always slanting and provide less heat, therefore कॉल्ड फ्रिगिड जोन। तो ये जो एरिया होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का, और बिल्कुल इसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल का जो एरिया होता है, ये जो होता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सन जो है बहुत ज़्यादा राइज नहीं होता है और इसीलिए यहाँ पे जो है सन रेज हमेशा स्लैंट होती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, इसीलिए इसको जो है कोल्ड जोन
या फ्रिगेट जोन के नाम से जाना जाता है। Here we can understood it with the help of a diagram। यहाँ हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ आपको एक हेयर a torch is given and its light is fallen on a straight surface। यहाँ लाइट इज फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस। ये एक स्ट्रेट सरफेस है, यहाँ पे टॉर्च दी हुई है और टॉर्च की जो लाइट है वो एक स्ट्रेट यानी समतल जो सतह है उसके ऊपर गिरती है। इट ब्राइट्स एंड कवर्स ए स्मॉलर एरिया। लेकिन जो इसकी लाइट है, टॉर्च की जो लाइट है, वो जब फ्लैट सरफेस पे फॉल होती हैं तो ये एक छोटा एरिया कवर करती हैं। बट छोटा एरिया कवर करने के साथ ही इसकी जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल ब्राइट होती है। हेयर ऑब्जर्व द फिगर बी। यहाँ फिगर बी को ऑब्जर्व कीजिए। हेयर इज ऑल्सो ए टॉर्च एंड इट्स लाइट इज फॉलिंग ऑन ए slanted surface। the surface is known as slanted surface। यहाँ जो है टॉर्च दी हुई है और टॉर्च की जो लाइट है वो सीधी गिर रही है एक स्लैंट यानी तिरछे धरातल पर या तिरछे सतह पर। और इसकी जो लाइट है वो जो है स्लैंटेड सरफेस पे जब गिरती है तो ये एक बड़े एरिया को कवर करती है। लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस होती है, टॉर्च की जो ब्राइटनेस है, इसकी जो रोशनी है यानी इसकी जो ब्राइटनेस है वो एक बड़ा एरिया तो कवर कर रही है, लेकिन जो इसकी ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ये एरिया तो बिगर कवर कर रही है लेकिन जो लाइट की जो कैपेसिटी है वो डिम है। By this example we learned that when the sun rays falls on a straight surface it is bright but covers a smaller area। कि जब जो सनलाइट है सन की जो लाइट है वो किसी स्ट्रेट सरफेस पे गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है लेकिन वो एक छोटा एरिया कवर कर पाती हैं। लेकिन जब सन की जो रेज हैं, व्हेन सन रेज फॉल्स ऑन ए स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। कि जब सन रेज हैं वो किसी स्लैंटेड सरफेस पर फॉल होती हैं तो वो कम ब्राइट होती हैं लेकिन वो एक बिगर एरिया कवर करती हैं। What are the longitudes? What are the longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude as 20 degrees south। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? किसी भी एरिया की जो फिक्स जो पोजीशन होती है किसी भी एरिया की, उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि हमें जो उस प्लेस की लैटिट्यूड्स के अलावा और कुछ ज़्यादा जानकारी हो। आप देखोगे कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि टोंगा जो आइलैंड है वो पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशियन में है। ये दोनों ही हैं जो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं। अब जब हमें उनकी जो प्लेस को लोकेट करना है तो सबसे पहले हमें जो है हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो ईस्ट और वेस्ट से ये प्लेसेस जो हैं कितनी दूरी पर हैं, यानी गिवन लाइन का जो रेफरेंस है उस पर ये कितनी दूरी पर हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। दीज लाइंस यानी वो रेफरेंसेस लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। And the distance between them are measured in degrees of longitudes और इनका जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर किया जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर जो डिग्री है वो जो है मिनट्स में डिवाइड है और मिनट्स के बाद में एंड मिनट्स इनटू सेकंड और मिनट्स को जो है सेकंड में डिवाइड किया गया है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। और जो इनका जो मेजरमेंट है ईच डिग्री है उसको डिवाइड किया गया है मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में डिवाइड किया गया है। ये सेमी सर्कल्स हैं और इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं और एट पोल्स पे जाकर जो है इसका जो मेज़रमेंट है वो 0 डिग्री रह जाता है, जहाँ की सारी मेरिडियंस हैं वो मीट होती हैं यानी आपस में मिल जाती हैं। Unlike the parallels of latitudes, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is situated or located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitudes of a place is followed by the letter E for east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। और जो मेरिडियंस होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है कि जो है हम नंबर ऑफ़ मेरिडियंस को मालूम कर सकें। तो पहले ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो सभी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइडेड किया कि जो मेरिडियंस की जो बिगनिंग है यानी शुरुआत है वो एक मेरिडियन से की गई जो कि ग्रीनविच से पास होती है, जहाँ पे कि ब्रिटिश रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी है वो लोकेटेड है। ये मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन के नाम से जानी जाती है और उसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। एंड फ्रॉम इफ़ वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवार्ड, और इसको जो हम हैं ऐसे काउंट करते हैं कि 0 डिग्री से शुरू होकर और ये 180 डिग्री ईस्टर्न साइड में और 180 डिग्री वेस्टर्न साइड में हम इसको काउंट करते हैं। प्राइम मेरिडियन है
जो है कि अर्थ को है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर. So therefore the longitudes of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and the 180 degree west meridians are on the same line. तो जो ये है, इसीलिए जो है ये कितना इंटरेस्टिंग है कि नोट करने लायक भी है ये चीज़ कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री जो वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन पर ही सिचुएटेड हैं. हियर इज ए डायग्राम ऑफ ग्रिड टू अंडरस्टैंड. नाउ look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe, figure 2.6. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. तो इस एग्ज़ाम्पल की अब जो है हम किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है उसको फाइंड करने के लिए जो है उसकी जो ग्लोब पे जो लोकेशन है यानी ग्रिड पे जो उसकी लोकेशन है उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है आसाम में धुबरी जो प्लेस है वो 26 डिग्री नॉर्थ में है और जो है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, यानी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम हैं ग्रिड पे 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को फाइंड करेंगे और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को. जहाँ ये लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो ही जो पॉइंट हैं वो इनकी लोकेशन को शो कर देगा. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper that are given in figure 2.7. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal line as north latitudes. Now you will see that circle A is located on B and on capital latitude and 1 degree B degree on north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. इसकी हेल्प से जो है आप अदर सर्कल्स को भी जो है सर्च कर सकते हैं. जैसा कि हमने अभी ऊपर रीड किया था कि अगर हमें धुबरी का जो लोकेशन एग्जैक्ट फिक्स लोकेशन मालूम करनी है तो हमें उसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए जो एक जो है इक्विडिस्टेंट वर्टिकल बनाना पड़ेगा. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेगी एक पेपर पे और उनको लेबल करना पड़ेगा. वर्टिकल रोज में नंबर्स के साथ और हॉरिजॉन्टल रोज में लेटर्स के साथ. जैसे ये जो वर्टिकल्स जो रो हैं उनको हम नंबर्स में शो करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको हम लेटर्स में शो करेंगे और इनको हम करेंगे नंबर्स में शो. ठीक है. अब हैं हम कुछ स्मॉल सर्कल्स बना देंगे जहाँ पे कि ये जो हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं हम उनको जो है स्मॉल लेटर्स में राइट कर सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E इस तरह से.
यहाँ पर जो है वर्टिकल जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को, और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ लैटिट्यूड्स को। अब इस सर्किल की हेल्प से, अब यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से, यानी कि जो हमने एक जो ग्रिड बनाया है पेपर पे, इसकी हेल्प से जो है आप अदर लोकेशंस, सर्किल जो दिए हुए हैं, स्मॉल जो सर्किल्स हैं उनकी लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी काटती हैं, वहाँ पे जो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेस की हम फिक्स लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। Dear students, here is a figure of time zones of the word for you. Observe it carefully. And our today's chapter is complete. We completed its part second. Thank you for watching my lesson plan.